So just a recap, the last model that we have with us is the Bohr's model. Okay, and Bohr's model says what? Electrons revolve in circular orbits called energy shell. As long as an electron remains in the same energy level, it neither loses energy nor gains energy. Electrons gain energy when they move out to outer shell, lose back the same amount of energy when they come back to inner shell. So he actually killed the ambiguity of stability of atom, because Rutherford only said it moves in circular orbit, but we know if something moves in circular orbit and if it is accelerated, then it should radiate energy, and if you radiate energy you cannot move in circular orbit because you will be following a spiral path, आपका energy खत्म हो जाएगा, and the atom should collide and get destroyed. But Bohr said that they move in closed circular orbit. Now our next part is, apart from that, you know, when Rutherford coined the term nucleus, Rutherford में nucleus में क्या है बोला था? The nucleus is a small part of the atom which contributes to maximum mass of the atom. Okay, and it's a dense, size is very small as compared to an atom, and it is comprising of positive charge. So as per Rutherford's model, the nucleus had all the protons in it. But later down the year, by 1932, still the nucleus's mass was not getting matched by only mass. So then came a person whose name was जेम्स चैडविक. इससे ज्यादा आपका मेंशन नहीं है. जेम्स चैडविक, अगर आपको जानना और है तो जेम्स चैडविक वाज अ ज्यू. ही वाज एक्चुअली इवन इम्प्रिजन्ड बाय द जर्मन्स. बाद में ही गोज टू अमेरिका. जर्मनी में उस टाइम पे 1932 मींस द नाजी थिंग इज गोइंग ऑन. सो ही वाज एक्चुअली इम्प्रिजन, प्रिजन में था, and he discovers neutron, and neutron is the main particle which is necessary further for all atom bombs and other things. So James Chadwick gives another particle which is known as neutron. और न्यूट्रॉन के बारे में समझ लेते हैं. न्यूट्रॉन होता है न्यूट्रल, मींस इट हैज नो चार्ज इन इट. न्यूट्रल मींस नो चार्ज. उसके पास सिर्फ क्या होता है बेटा? मास होता है. एंड द मास इज सेम एज द प्रोटॉन मास. हैव यू अंडरस्टूड? अब देखो न्यूक्लियस कितना भारी हो गया. Nucleus was very heavy, and the heaviness could not be attributed only to the proton count. Therefore, there was some other particle also which was present, and that other particle is known as neutron. So now बोर के कॉन्सेप्ट को लेते हैं और जेम्स चैडविक के न्यूट्रॉन्स को भी लेते हैं. एंड इफ वी नाउ ट्राई टू सी एन एटम कंप्राइजेस ऑफ अ न्यूक्लियस. इसमें क्या क्या है बेटा? वी हैव अ प्रोटॉन एंड वी हैव न्यूट्रॉन्स. प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स को टुगेदर करने से हम इनको क्या नाम देते हैं? न्यूक्लियॉन्स. ओके, न्यूक्लियॉन्स. एंड our electrons, the lovely cute little fellows, they revolve in circular orbits, with each orbit having a definite amount of energy, and these orbits have been given the name as energy levels. और इनको बोर ने क्या क्या नाम दिया है? KLMN ऐसे करके, ठीक है ना? KLMN. Are we fine till this much? Anyone has any doubt here? So Bohr's postulate kills the what is the only difference between Bohr's model of atom and Rutherford? Everything is same. Rutherford could not explain the stability of the atom. As per Rutherford, electron revolves in circular orbit just as planets move around the sun, so it is also known as planetary model. But electron being a charged particle, if it moves in circular orbit, it is undergoing acceleration, and whenever a charged particle undergoes acceleration, it should lose energy, come back and collide with the nucleus. But such a thing did not happen. This was clarified by Bohr, and he said the electrons move in closed circular orbits which are known as energy level. As long as an electron is in one energy level, it neither loses nor gains energy. If the electron moves out, it gains energy. If it moves back, it loses the same equal amount of energy. And further, he named them as KLMN. In the interim, neutrons as nuclear particles were also discovered. So now, since two type of particles are there in the nucleus, we call them as nucleons, and this is the nucleons reside inside the nucleus. Our next topic is how are electrons distributed. Can I go ahead now? How are electrons distributed? So when you study this electron distribution,
Now this was also given by Bohr, so we call it the Bohr's postulates, and they are saying that electrons revolve in circular orbits which are known as energy level. पर याद रखिए, you are in grade 9, so you study this, and this is actually works only up to atomic number 20, which is calcium. इसके आगे ये वर्क नहीं करता है बोर्स पोस्टुलेट्स. क्या ये करेक्ट है? ये करेक्ट नहीं है. 11 में जाते जाते वी स्टडी Aufbau's principle, and this is what is valid till today. Aufbau's principle, and this is based on again the quantum model of atom. अब आप सोचेंगे Aufbau कोई आदमी है? Aufbau is not a this is a German word. It means building blocks. Aufbau कोई आदमी नहीं है, कोई साइंटिस्ट नहीं है. It means that it is the building blocks, how atoms are. This is in grade 11. ये मॉडल हम पढ़ते हैं, बट ये मॉडल चलेगा नहीं, यही चलता है. ठीक है, ये थोड़ा टफ है. अब इसको देखते हैं. तो बोर्स फॉर्मूला इज दैट द एनर्जी लेवल्स, जो हमारे एनर्जी लेवल्स है, एनर्जी लेवल्स आर डेजिग्नेटेड एज के, एल, एम, एन इन दिस वर्ड, एंड दे आर असाइन्ड a number called n. N is the shell number. So n for k is 1, L is 2, m is 3, n is 4. n is the energy level number. लिख नहीं रहे हो, बड़े सुन रहे हो? अच्छा, लिखा हुआ है ना, समझते जाओ, as long as you understand. Okay, and electrons are filled to the formula 2n square. 2n square is maximum number of electrons in an एनर्जी लेवल. अब यहां पे थोड़ा सा आपको समझना होगा. हाँ, दिस इज मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. मैक्सिमम इसका मतलब ये नहीं कि इतने इलेक्ट्रॉन्स आने ही हैं, इससे कम भी आ सकते हैं. सो KLMN you will treat them as floors or room numbers in a floors in a hotel, and you are the receptionist. You are supposed to allot new coming guests. Okay, now first thing, 2n square. So if you go by 2n square, if you see for K shell, the maximum number of electrons will be 2 into 1 square, which is equal to 2. L के लिए कितना होगा बेटा? 2 into 2 square, which will be equal to 8. M के लिए क्या हो जाएगा? 2 into 3 square, which will be 18. N के लिए क्या हो जाएगा? 2 into 4 square, which will be equal to 32. 2, 8, 18, 32. इस तरह से ये होता है maximum number of electrons. ठीक है. अब इसके साथ कुछ छोटे मोटे एक्सेप्शंस हैं जो आपको याद रखने चाहिए. एक्सेप्शंस क्या है? नंबर 1, आउटर मोस्ट. दीज आर एक्सेप्शंस. आउटर मोस्ट ऑर्बिट, or you can say energy level, can have max 8 electrons. Outermost can have max how much? 8 electrons only. And from here comes the word octet. 8 electrons only. Okay. यहाँ पे एक और है 1a. If it is single shell, if it is single shell, अच्छा, if it is a single shell entity, then outermost में कितना शेल है? एक ही तो शेल है ना. सिंगल शेल होने से वही आउटर मोस्ट हुआ. वो इनर मोस्ट भी है, वो आउटर मोस्ट भी है. देन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन काउंट इज 2. और यहां से बात आता है ड्यूप्लेट का. देन द इलेक्ट्रॉन काउंट इज 2. डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? इफ यू आर हैविंग 2 shells, say K and L, then L can maximum hold how much? 8. कोई प्रॉब्लम नहीं. If you are having 3 shells, then your outermost shell is M. M can hold maximum how much? 18. But since M is outermost shell, M can hold at that time only up to 8. Clear? And if you're a single shell, तो single, अदिति बेटा ये समझ में आ रहा है तो ये चीज. If you're a single shell, then in single shell, K is your inner, K is your outer. तब लेकिन outermost कितना हो जाएगा? Duplet हो जाएगा 2. Everyone understood this logic or not? Tell me. Okay? और ये जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन मैं बोलता हूं ना, इन आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स का एक और नाम भी है. इसका नाम होता है
वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको थोड़ा आगे बढ़े, इसको स्क्रीन को थोड़ा चेंज करते हैं, उसको थोड़ा सा समराइज करके अच्छे से लिखते हैं। कुछ ऐसा होगा कि इलेक्ट्रॉन फिलिंग जो होगा, इलेक्ट्रॉन फिलिंग विल गो बाय 2n square, no doubt about that. Okay, valence electron maximum, max count, अगर आप सिंगल शेल है तो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट होगा 2। जैसे हाइड्रोजन मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं। अगर आप ग्रेटर देन 1 शेल है तो आपका काउंट हो जाएगा 8। ठीक है, आइए कुछ एटम्स को देखते हैं एक एक करके। सो लेट्स स्टार्ट विथ हाइड्रोजन। उसके बाद हमारे पास है हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। अभी नाइट्रोजन तक ही लिया, ठीक है। नाइट्रोजन, एक मिनट, हाँ, क्योंकि 20 तक हमें करना है, छोटा कर देते हैं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, उसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फिर आ गया एल्यूमिनियम, ये सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, बोरॉन। कार्बन के नीचे हो जाएगा हमारा सिलिकॉन, फॉस्फोरस, मैच नहीं किया, फॉस्फोरस। ऑक्सीजन के नीचे हो जाएगा सल्फर, और छोटा करना पड़ेगा। I wanted to show all 4 in one go, तो छोटा। फॉस्फोरस, ऑक्सीजन के नीचे आ जाएगा सल्फर, क्लोरीन के नीचे आ जाएगा क्लोरीन, नियॉन के नीचे आ जाएगा आर्गन, एंड देन कम्स पोटेशियम एंड कैल्शियम। पोटेशियम एंड कैल्शियम, एक एक करके देखते जाओ। एटॉमिक नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है बच्चा, ओके। और यहाँ पे हम लिख लेते हैं हमारे शेल्स। क्या क्या शेल है हमारे पास? K, L, M, N। चले भरना शुरू करें। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1। तो एक 1 है तो उसको हम K के रूप में दाखिला देंगे। हीलियम कितना है? 2, तो 2, हीलियम तक 2। क्या हम 2 डाल सकते हैं? हाँ, K कैन टेक 2 ना। अब हमारा K भर चुका है। नया गेस्ट कौन आया होटल में? लिथियम। लिथियम को अभी हमें बोलेंगे, लिथियम साहब आप चले जाइए अगले फ्लोर में। 2, बेरिलियम का कैसा रहेगा? 2, यहाँ पे हो जाएगा 2। अभी ये 8 इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है, लेकिन फिर बोरॉन में कैसा हो गया? 2, 3, कार्बन में 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8, ठीक है ना, 2, 8। यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। ये है आपका पहला इनर्ट गैस। दिस इज योर फर्स्ट इनर्ट गैस ड्यूप्लेट। दिस इज योर सेकेंड इनर्ट गैस 2, 8। अग्रीड? नाउ इज द इंटरेस्टिंग पार्ट वेयर चिल्ड्रन मेक द मिस्टेक। चलिए आइए देखते हैं। नेक्स्ट इज कौन बेटा? नेक्स्ट इज सोडियम 2। अब देखो L हैज अ कैपेसिटी ऑफ हाउ मच? मैक्सिमम 8 तो भर चुका है ना। तो अब हम सोडियम को बोलेंगे भाई साहब आप अगले फ्लोर पे चले जाइए, M फ्लोर पे चले जाइए। कहाँ चले गए? M फ्लोर पे। फिर मैग्नीशियम क्या हो जाएगा? 2, 8, 2, 2, 8, 3, 2, 8, 4, है ना, 2, 8, 5, 2, 8, 6, 2, 8, 7, हाँ 2, 8 थोड़ा आगे पीछे हो गया लिखना। एंड आर्गन में हो गया 2, 8, 8। यहां पे जाके हमें मिलता है हमारा अगला इनर्ट गैस आर्गन, ठीक है। देन वी कम टू पोटेशियम एंड कैल्शियम 19 एंड 20। तो पोटेशियम एंड कैल्शियम, तो इनके पास भी हम लिख लेते हैं हमारे
कौन से, K L M N, इससे पहले तक कौन था, आर्गन तक हो चुका था हमारा। सो पोटेशियम इज 19 2 8। अब देखो M में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अब हम इसमें जो बच्चे गलती करेंगे, हम इसमें 289 लिख दिए, 2 + 9, लेकिन रूल क्या था, if you are the last shell then you should have how much electrons, only 8 electrons. You have filled 9. Why did you fill 9? Because as per 2n square m can have 18 electrons. हमने तो भी 9 ही घुसाया है, प्रॉब्लम क्या है फिर, नहीं प्रॉब्लम है, आपका 19 वर्ड तो करेक्ट है, पर ये लास्ट शेल है, लास्ट शेल कैन हैव ओनली 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसलिए यहाँ पे हमें कितना इलेक्ट्रॉन्स रखना होगा, 8, और अगले इलेक्ट्रॉन के लिए अगला फ्लोर खोलना होगा। नाउ यू जस्ट सी वेदर इट इज ओबेइंग बोर्स पोस्टुलेट और नॉट। बोर सेज दैट मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल शुड बी 2n स्क्वायर, 2 पे 2, L पे 8 पे 8, M में कितने जा सकते हैं, 18, 18 इज मैक्सिमम, आपने 8 घुसाया, कोई प्रॉब्लम नहीं। और क्या कहता है, वैलेंस कैन हैव मैक्सिमम 8, अभी 1 है, क्लियर है। उसके बाद कौन आया बेटा, कैल्शियम, तो कैल्शियम हो जाएगा 2882। अब जरा आप पीरियोडिक टेबल को अगर हम देखें ना, तो ग्रुप 1 में देखोगे हाइड्रोजन है, ली, ना, की, और अब से फरियाद, वो सब छोड़ दो, हम सिर्फ पोटेशियम तक देखते हैं। ग्रुप 2 में कौन कौन है बेटा, बेटा, मांगे, बस। उसके बाद कौन आता है, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, यहां तक है। अगर हम ग्रुप 13 में देखें तो हमें क्या मिलेगा, बोरॉन मिलेगा। ग्रुप 13 देखें तो मजेदार चीजें हैं सब, बोरॉन मिलेगा, एल्यूमिनियम मिलेगा। बोरॉन के बाद हमें मिलता है नाइट्रोजन और फास्फोरस मिलेगा, ऑक्सीजन, सल्फर मिलेगा, कार्बन मिस हो गया, हमें मिलेगा कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, नियॉन, आर्गन, ठीक है, दे आर जस्ट बिलो ईच अदर। इसका ग्रुप नंबर कितना है, इसका ग्रुप नंबर है 1। देखो इन सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 आएगा, हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, लिथियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, पोटेशियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, अच्छा। बेरिलियम, ये सब कितने ग्रुप में है, ग्रुप 2, इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होना चाहिए 2। देखो जब बेरिलियम का 2, बेरिलियम के नीचे कौन है, मैग्नीशियम 2, उसके नीचे कौन है, कैल्शियम 2। फिर कौन आया, बोरॉन, ओके। बोरॉन जाते जाते यहां से हम क्या बोलते थे, इट ऑलवेज यूज्ड टू बी द ग्रुप नंबर -10, सो दिस इज ग्रुप नंबर 13, दिस इज ग्रुप 13, बट इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन शुड बी ग्रुप नंबर -10, यहां से ये वाला फॉर्मूला होता है। सो 13 - 10 स्टैंड्स फॉर हाउ मच, 3। अब बोरॉन को देखिए, बोरॉन में 3 और एल्यूमिनियम में भी 3। फिर ये कौन सा ग्रुप हो गया, ये ग्रुप हो गया 14। 14 मींस इट शुड बी 14 - 10 4। अब देखो कार्बन में 4 आएगा, सिलिकॉन में भी 4 आएगा। उसके बाद कौन है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इज ग्रुप नंबर 15, 15 - 10 इज 5, ये भी 5, और नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस 5। उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज ग्रुप 16, 16 मींस 16 - 10 6, तो 16 - 10 6, इसको भी 6 आया, इसको भी 6 आया, अगले वाले को भी 7, इसको भी 7, उसके बाद 8, उसके बाद 8। अब आपको लॉजिक समझ में आया। So now if you talk about valency, valency is the number of electrons that an atom can gain, lose or share. So have you understood how electrons are distributed? So this is understood. Our next topic talks about, ये तो हो गया, इतना सारा हमने filling कर लिया। Now the next topic is atomic number and mass number. Clear है? What is atomic number? Count of protons. What is mass number? Count of nucleons. So next discussion is on atomic number. Atomic number is written by Z and mass number is written by A. So if your element is X, you write XZA. So if your element is oxygen, it has atomic number of 8, mass number of 16.
And what is atomic number? It is the count of protons, and this is the count of protons plus neutrons, known as nucleons. क्लियर? यहां पे कोई डाउट है तो पूछ लो. फाइन, ओके. चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, which is known as isotopes. Isotopes are atoms of same element which have same atomic number but different mass number. Stylish है. Should have the same atomic number but different mass number. They are atoms of the same element. We start with there are many examples of isotopes. Our first example will be that of something called hydrogen. Hydrogen is an element, and in the universe hydrogen is found in 3 different forms. The first form of hydrogen is known as prosium. The second form of hydrogen is known as deuterium, and the third form of hydrogen is known as tritium. ठीक है, ये तीनों ही हाइड्रोजन है. दुनिया में ज्यादातर मात्रा में प्रोशियम पाया जाता है. व्हेन वी मेक हाइड्रोजन बॉम्ब एट दैट टाइम वी यूज ड्यूटेरियम, हम यूज करते हैं. अच्छा, ऑल आर सेम एलिमेंट हाइड्रोजन, दैट मीन्स सबके एटॉमिक नंबर सेम है. तो ये भी H है, ये भी H है, ये भी H है, सबके एटॉमिक नंबर सेम है. मतलब इसका भी एटॉमिक नंबर 1 1 1. दैट डिफर इन देयर मास नंबर. The hydrogen that we get in our planet Earth, this is 2, this is 3. अब जरा सुंदर से देखो, अगर हम इसके लिए सबके लिए प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का काउंट देखें for all of these, okay, proton and neutron count, let's see for all of this. Now mass number is actually addition of what? Proton and neutron. इसका mass number 1 है, तो हम पूछेंगे वो 1 कौन दे रहा है, प्रोटॉन दे रहा है या न्यूट्रॉन दे रहा है? एटॉमिक नंबर भी तो 1 है, दैट मीन्स प्रोटॉन शुड बी 1. इसका न्यूट्रॉन काउंट 0 है. इसमें प्रोटॉन 1 है, न्यूट्रॉन भी 1 है, इसलिए 1 + 1 2 आ रहा है ऊपर, और इसमें 1 और इसमें 2 है, 1 + 2 3. दिस इज आइसोटोप. Isotopes are atoms of the same element which have the same atomic number but different mass number. Similarly, we have an isotope of carbon. The carbon atomic number is C6. The one that we get more is known as carbon 12. There is another one called carbon 14. There's carbon 11 also. तो इसका अगर हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन काउंट हिसाब करें तो कैसा होगा? देखिए, इसके प्रोटॉन न्यूट्रॉन काउंट, इसमें 6 है तो इसको भी 6 प्रोटॉन 6 प्रोटॉन. इसके पास कितने हैं? 12. दैट मीन्स 6 न्यूट्रॉन. इसके पास कितने हैं? 8 न्यूट्रॉन्स. ये आइसोटोप को हम पढ़ते क्यों हैं? इसका रीजन है, धीरे धीरे दिस इज हायर लेवल, एज एटॉमिक नंबर increases, as atomic number increases, you will find that count of protons will no more longer be count of neutrons. In fact, the count of neutrons will become heavy, more. Neutrons के काउंट बढ़ते जाते हैं. जैसे न्यूट्रॉन के काउंट बढ़ जाते हैं, हमारा जो न्यूक्लियस है ना, ये हायर लेवल स्टडी है, न्यूक्लियस अनस्टेबल बनता जाता है, और ये न्यूक्लियस क्या करेगा? डिसइंटीग्रेट करेगा, ये टूट जाएगा. और जब ये डिसइंटीग्रेट करता है, ये शुरू करता है एक प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी. सो when you study radioactivity in higher classes, you will understand. And that time, say suppose carbon 14 is a radioactive element. इसी से हम सबके एज डिफाइन करता है. तो जब ये डिसइंटीग्रेट करेगा, बिकॉज यू सी द बैलेंस इज नॉट देयर, ये 6 ये 8 जैसे से बढ़ जाता है. लेकिन जब आप यूरेनियम में जाते हो ना, लुक एट यूरेनियम इज समथिंग 92 और ये है 235. 92 को डबल करने से कितना होता है? 184. उससे ये 235 है, मतलब न्यूट्रॉन काउंट कितना ज्यादा है, और भी ये सब डिसइंटीग्रेट हो जाता है. एंड दैट टाइम दिस आइसोटोप विल बी कॉल्ड एज अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप.
and it will decay. So in higher level, आपके लेवल में अभी आपको जस्ट इतना ही जानना है what is an isotope. So is isotope clear with you? Isotopes are elements of the same atomic number but different mass number. इस आइसोटोप से जो 9th लेवल में हम चीज पढ़ते हैं वो एक और चीज हमें पढ़ना है, that is the other thing that we study is, if you look at an element called chlorine in the periodic table, you will find that chlorine is written as C17 35.5. इससे आपको फिर से हो जाता है एक तरह का डाउट, ये कैसे हुआ? 17 का मतलब है उसके पास है 17 प्रोटॉन्स, ये तो करेक्ट है। और ये क्या है बेटा? ये है मास नंबर। मास नंबर क्या होता है? काउंट ऑफ न्यूक्लियॉन्स। काउंट ऑफ न्यूक्लियॉन्स का मतलब क्या है? काउंट ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। अगर हिसाब मिलाए तो यहाँ पे 17 प्रोटॉन्स है और कुछ न्यूट्रॉन्स है। अब आप बोलना चाहते हैं 35.5 मतलब एक न्यूट्रॉन को क्या काट के दांत से चबा के किसी ने आधा रख दिया है? हाउ डिड दैट 0.5 एट्रीब्यूट टू? वेयर डिड द 0.5 कम फ्रॉम? बात समझ रहे हैं ना? तो ये जो भी आप पीरियोडिक टेबल में जो भी आप देखते हैं ना, दिस इज कॉल्ड द वेटेड एवरेज मास। अब हमें देखना है क्या है। अब हम चलते हैं दुनिया में, दुनिया यानी कि यूनिवर्स। यूनिवर्स में क्लोरीन दो तरह से पाए जाते हैं। अगर आप अभी बाहर जाके एटमॉस्फेयर में क्लोरीन ढूंढेंगे तो क्लोरीन के दो फॉर्म्स हैं। एक क्लोरीन का फॉर्म है C17, ये भी 17, एक है 35 और एक है 37। हाँ, 35 और एक है 37, दो तरह में पाया जाता है। मतलब ये आइसोटोप हो गया। समझ में आया? अब हमारा एग्जाम्पल करेक्ट है। इसमें प्रोटॉन्स कितने हुए? प्रोटॉन 17 है। न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 18 है। इसमें प्रोटॉन्स कितने हैं? 17 है। न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 18, 20 न्यूट्रॉन्स है। लेकिन पीरियोडिक टेबल में ये दिखाया जाता है, ये जो है ना, ये इन दोनों को का एवरेज दिखाया जाता है। अब एवरेज कहां से हम कैलकुलेट करते हैं? यूनिवर्स में अगर हम 100% सैंपल ले तो ये हमें 75% मिलता है और ये कितना मिलता है? 25%। तो ये वाला फिगर कहां से आया? ये वाला फिगर आया कि अगर हम दुनिया में एक 100% सैंपल ले, हमें 75 अच्छे बच्चे मिलते हैं, 25 गंदे बच्चे मिलते हैं। तो हमने 100 सैंपल्स आंख बंद करके लिया तो हमें कितने मिलेंगे उसमें? तो हमने अगर एक क्लोरीन लिया तो एक क्लोरीन में 0.75% we will find 35 मास वाला, and 0.25 you will find how much? 37 मास वाला। इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो हमें मिलेगा 37.5, और वही चीज यहां पे, सॉरी 35.5, और वही चीज हम एक्चुअली यहां पे दिखाते हैं। So some question comes, how do you explain the decimal or fraction for mass number? What is the reason for decimal or fraction of mass number? The decimal or fraction of mass number is actually representing the weighted average mass of all the isotopes of that particular element as available in the universe. For example, chlorine as a gas is available in the universe in two isotopes. One is C1735, one is C1737. It is found that 75% of the naturally found chlorine has a mass of 35, whereas 25% of the naturally found chlorine has a mass of 37. So if you do their weighted average, अभी हम weighted average करें, average क्या होता है? 35 plus 37 divided by 2. वो average तब जो आप करते हो हमेशा, this plus this divided by 2, but that is correct if both are present in equal quantities. अब वैसा तो है नहीं, ये तो biased है ना, इसको ज्यादा आता है तो हम इसका एवरेज कैसे निकालते हैं? इसका 0.75 ले लो और इसका एक क्लोरीन में 3/4 ये रहता है और 1/4 ये रहता है। ये करने से हमें डेसिमल आता है। दिस इज द रीजन ऑफ हैविंग डेसिमल एटॉमिक मास नंबर्स। Otherwise, decimal atomic mass numbers logically is not possible because mass number is the count of protons plus neutrons. How can neutrons be in decimal? No, sir, they are not in decimal. It is actually that the atom exists in two isotopes and the percentage of occurrence of both the isotopes are taken to calculate the weighted average.
कॉन्सेप्ट क्लियर? ठीक है, ओके। अब इन आइसोटोप्स का कुछ यूजेस रहता है। सो ऑल आइसोटोप्स में एक ही यूजेस है, आइसोटोप्स को रेडियो एक्टिव यूज है। अब रेडियो एक्टिव यूज के अच्छे यूजेस भी हैं और गंदे यूजेस भी हैं। यूरेनियम 235, यूरेनियम U235 हम बोलते हैं, दिस इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर। अगर इस न्यूक्लियर रिएक्टर से आप बिजली उत्पाद कर रहे हैं इसकी एनर्जी से, तो समझ लो तो ये शांतिपूर्वक काम है। इसी को अगर आप एटम बॉम्ब में डाल रहे हैं तो डिस्ट्रक्टिव काम है। और आइसोटोप्स को किसमें यूज करते हैं? वी यूज इट फॉर कैंसर ट्रीटमेंट। ठीक है, कैंसर ट्रीटमेंट कैसे? रेडियो एक्टिव एनीथिंग इज बैड, एनीथिंग रेडियो एक्टिव किल्स योर सेल्स। व्हाट इज कैंसर? कैंसर इज अ डिजीज ऑफ ग्रोथ ऑफ अनवांटेड सेल्स। तो अगर ये सेल्स को मार सकता है तो अनवांटेड सेल्स के ऊपर फोकस करके वो दिया जाता है, लेकिन वो फिर थोड़ा सा आपके नॉर्मल सेल्स को भी मारेगा। एवरी टाइम यू गो फॉर एन एक्सरे और एनी सॉर्ट ऑफ रेडिएशन, some amount of your cells are getting killed. So do not expose unwantedly. जैसे बोल देता ना, दो एक्सरे करा लीजिए। In fact, in X-ray, the room in which your X-ray will be done, why these things are getting prevalent? Because they are very accurate and non-invasive. आदमी को सबसे ज्यादा डर लगता है prick and all these. X-ray करने के लिए आपको कोई दर्द नहीं, कुछ नहीं। You will just stand in front of a machine which does not even look like a gun. बड़ा प्यारा सा एक मशीन है, और वो जो रेस छोड़ रहा है वो आपके सेल्स को मार देता है। इनफैक्ट द टेक्नीशियन हु विल टेक योर एक्सरे, दैट पर्सन विल आल्सो बी नॉट इन दैट रूम, ही विल बी इन सम अदर रूम एंड टेक योर एक्सरे एंड यू विल बी द ओनली पर्सन। सीटी स्कैन, एक्सरेज, so do not go. Sometimes they will say, जैसे I had my kidney stones, they will say एक एक्सरे कर लीजिए, फिर एक्सरे करा के बोलेगा क्लैरिटी नहीं आ रहा है, एक सीटी स्कैन। तो जब कराना ही है तो एक सीटी स्कैन ही कराइए, यू आर सेविंग वन X-ray. So don't go for. So this is there. Third is they are also used as tracers. Tracers का मतलब क्या है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। ये कैसा रहता है, इसको देखो। Suppose for example, okay, let's say this is the map of India. Okay, now we have got lots and lots of oil gas pipeline. One of the oil gas pipeline is like यहाँ हजीरा से होके, MP से होके, ये जगदीशपुर इतना दूर is coming out from Gujarat, crossing MP, and the pipeline is going up till UP. ये मिट्टी के नीचे से जा रहा है, यहाँ पे लीकेज हो गया। आप कैसे डिटेक्ट करोगे कहाँ पे लीकेज हुआ है, कहाँ नहीं हुआ है? सो व्हाट यू डू इन दिस पाइपलाइन, whatever material is going, say suppose gas is going or crude oil is going, you will inject one radioactive isotope with it. और रेडियो एक्टिविटी छुप नहीं सकता है, जहां लीकेज है वहां से रेडिएशन आना शुरू होगा। So either with helicopters or other thing, with a Geiger-Müller counter, they can trace it and they can trace and they can find that यहाँ पे लीकेज है, खोदो और उसको ठीक करो। Another thing in which radioactivity is used is for thickness. For example, there is a radioactive source here and there is a radioactive counter here. ऐसा एक source और एक counter. And say suppose I am manufacturing very nano grade technology, ये iPhone को चेक कर रहे हैं, so we'll pass it through here. जहाँ thickness ज़्यादा हो जाएगा ना, the rays will not be able to penetrate. So surface geometry देखने के लिए भी रेडियोएक्टिव, ये सब शांतिपूर्वक यूजेस हैं। आपके बुक में क्या क्या लिखा है? Isotope of uranium is used as fuel. I told you, uranium 235. Isotope of cobalt is used in the treatment of cancer. So you should know. And isotope of iodine is used in the treatment of goiter. Goiter जानते हो? Goiter is a disease जो अभी नहीं होता है, जब हम छोटे थे ना तब भी होता था, उसके बाद धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो गया। अभी जो आप नमक खाते हो ना पैकेट में, हम लोग एकदम जब छोटे थे ऐसा नमक नहीं आता था। नमक यूज्ड टू कम लाइक चीनी के क्रिस्टल्स के जैसे, और ऐसे पैकेज नहीं होते थे। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड मेकिंग समथिंग। गॉइटर में ऐसा होता है, गॉइटर इज अ डिजीज, दिस इज द थ्रोट ऑफ द पर्सन ना, यहाँ पे इतना बड़ा बल्ज हो जाएगा, एंड इट हैपेंस ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, दैट टू दैट रेडियोएक्टिव आयोडीन। तो तभी से सॉल्ट्स जो बिकने शुरू हुए, समटाइम व्हेन वी वर इन क्लास 4 और समथिंग, टेलीविजन में एड्स आने शुरू हुए, टाटा नया आयोडाइज्ड नमक, नाउ एवरी नमक इज आयोडाइज्ड मैंडेटरीली। तब सब नमक में आयोडीन नहीं होता था, आयोडीन की कमी होने से गॉइटर होना शुरू होता, इतना बड़ा बड़ा ऐसा लटक जाएगा ट्यूमर जैसा। नाउ वी डोंट सी, बट आई हैव सीन पीपल। अब शायद उनका जनरेशन खत्म हो गया है, ये भी एक बीमारी हुआ करता था।
Like polio is almost extinct in India, but have you seen a polio child and all? They will not be able to, जैसे अभी बड़ा हो गया तो वॉकिंग नहीं कर पाएंगे, just because 2 drops of polio देना पड़ता है, वही नहीं दे पाते थे. India is polio preventive, zero polio. So these are uses of radioactivity. If you are interested little bit to know, like you know what happens in an atom bomb and all, or how uranium 235, तो ये जो है ना, ये यूरेनियम 235 है. इसको क्या करते हैं, ये हाईली अनस्टेबल है. सो दिस इज एक्चुअली बॉम्ब्ड विद अ न्यूट्रॉन. एक न्यूट्रॉन आके हाई स्पीड में इसको स्ट्राइक करेगा. जैसे स्ट्राइक करेगा ना, यूरेनियम 2 एटम्स में कन्वर्ट हो जाता है. एक है बैरियम और एक है क्रिप्टन. अब यहाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फेल होता है. व्हाट इज द मास ऑफ यूरेनियम? 235. सो if you add the mass of krypton and barium, you should get 235. You will not get 235. You will get much less. वो मास गया कहां? वो मास ही एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और इस प्रोसेस में वो क्या करेगा, वो 2 और न्यूट्रॉन भी पैदा करेगा. समझ में आया? 2 और न्यूट्रॉन पैदा करेगा, और ये इसके साथ रहेगा एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी रहेगा, बहुत ज्यादा एनर्जी. क्योंकि जो इसको हम हायर क्लासेस में कहते हैं मास डिफेक्ट. जहां पे मास का डिफेक्ट होगा वहीं पे एनर्जी पैदा होगा, ह्यूज एनर्जी. उस एनर्जी में ये 2 न्यूट्रॉन का स्पीड बहुत ज्यादा रहता है. ये 2 न्यूट्रॉन जाके क्या करेगा, 2 और यूरेनियम 235 को स्ट्राइक करेगा. एक ने एक को मारा, फिर ये क्या करेगा, एक क्रिप्टन देगा, एक बैरियम देगा, और फिर से ये क्या करेगा, 2 और न्यूट्रॉन देगा. ये भी 2 और न्यूट्रॉन देगा. यहाँ पे क्रिप्टन देगा और क्या करेगा, और यहाँ से बैरियम देगा. अब आप सोचो कितने न्यूट्रॉन निकल गए? 4. These 4 will go and hit 4 more न्यूट्रॉन. इस रिएक्शन को हम कहते हैं चेन रिएक्शन. The only job of bombing is to do this detonation. एक बार ये स्ट्राइक कर दिया, फिर उसको और कुछ नहीं करना है. और इस चेन रिएक्शन को डेलिबरेटली हम बेकाबू कर देते हैं. Will not keep it in our control. So how much energy is released? Huge. This was what was dropped on Hiroshima. And the dropping is such that the aircraft has to also get out. So there were 2 aircrafts, one to photograph and one to bomb. Bomb करके आपको निकल जाना है, तो आपको लेके भस्म हो जाएगा वो. And the temperature of Hiroshima at that time rose to sun का 5600 in a radius of around 200 किलोमीटर के आसपास. 67 मीन्स टीपू द्वार तक ऐसे ही जल गया. चार्ट. इमेजिन हाउ मच इज द रेडिएशन. अब हम न्यूक्लियर रिएक्टर में हम क्या करते हैं, जब हम इसके लिए ये एनर्जी देगा ना, तो हमें न्यूक्लियर रिएक्टर में व्हाट डू वी वांट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी? वी वांट स्टीम. स्टीम विल बी पुट इन अ टरबाइन एंड इट विल रोटेट. तो स्टीम बनाने के लिए हमें क्या चाहिए बेटा? हमें चाहिए वाटर और हमें चाहिए हीट. ये हीट को हम यूज करते हैं ये एनर्जी से. और न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या करेंगे, न्यूक्लियर रिएक्टर में इन जो बैरियम, ये जो न्यूट्रॉन्स है ना, इन्हें हम स्लो कर देते हैं या फिर हम इन्हें एब्जॉर्ब करा देते हैं. मींस ये चेन रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं, इनको एब्जॉर्ब करके धीरे धीरे. जनरली अभी हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी कैसे आ रहा है? कोयला. कोल इज बीइंग बर्न्ड टू हीट वाटर टू क्रिएट स्टीम. 10,000 kg कोल बर्न करने से जितना हीट आएगा, 1 ग्राम यूरेनियम बर्न करने से उतना हीट आएगा. सो इमेजिन न्यूक्लियर पावर व्हेन जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी, द प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कम्स वेरियसली डाउन. जैसे हांगकांग, चाइना, ये सब न्यूक्लियर पावर चलता है, तो पावर बिकम्स वेरी चीप. पावर चीप हो जाएगा तो भाव्य सारा दिन एसी चला सकती है. इफ यू गो टू ईरान ना, ईरान इज वेरी चीप इन पावर, वेरी चीप. ईरान में जो लॉबी होता है ना अपार्टमेंट्स के, लॉबी, स्टेयरकेस, उसमें भी एसी है. हमारे यहाँ हाँ एसी, स्टेयरकेस, लॉबी, एवरीथिंग इज एसी. पावर इज वेरी चीप. स्टेयरकेस मतलब ये जो नीचे बाहर ये सब ना, ये सब एयर कंडीशन है. पावर इज चीप, फ्यूल इज चीप. 2 तो मान 1 लीटर गैसोलीन का. हमारे यहाँ प्राइस इज वेरी हाई. दिस इज व्हाट हैपेंस. ठीक है. देन कम्स वन मोर टॉपिक. जैसे हमने आइसोटोप सीख लिया,
एक और टॉपिक होता है आइसोबार्स। आइसोबार्स आर एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट मास नंबर। थोड़ा डिफरेंस है। हाँ, आप अभी क्या पढ़े थे? आइसोटोप। आइसोटोप में Z जो है वो सेम होता है, A जो है वो डिफर करेगा। और यहाँ पे कल्प्रिट कौन है? न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स में चेंज के लिए होता है। आइसोबार्स में A सेम होगा और Z जो है वो डिफर करेगा। एग्जाम्पल, आर्गन, कैल्शियम। आर्गन्स एटॉमिक नंबर इज 18, कैल्शियम इज 20, दोनों का ही होगा 40 और 40। इसमें एलिमेंट अलग अलग होंगे, इसमें एलिमेंट सेम होगा। एक ही एलिमेंट के दो रूप, दो एलिमेंट जिसमें मास नंबर सेम होगा, हाउएवर देयर this will be what you call atomic number will be different. That's it. We don't have anything more in this chapter. Is there anything that you feel? देखो चैप्टर शुरू हुआ कहां से? चैप्टर शुरू हुआ डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन से। वो था कहानी। Who discovered electrons? J.J. Thomson discovered electron. What experiment he did? Cathode ray tube experiment. Then what did he say? He gave a model. मॉडल का नाम क्या था? प्लम एंड पुडिंग मॉडल। क्या बोला कि पूरा एटम जो है पॉजिटिव स्फीयर है लाइक ए पुडिंग, और उसमें प्लम के टुकड़ों की तरह इलेक्ट्रॉन्स बिखरे पड़े हैं। अच्छी बात है, लेकिन उसके पहले ही the thing, proton particles were already discovered before them. They did not get a name. That was discovered by Eugen Goldstein. तो ये J.J. थॉमसन ने ये डिस्कवर किया, गोल्डस्टीन ने वो डिस्कवर किया, और इस सब को करने के बाद एटम को माना गया है कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं जो एक दूसरे के बराबर हैं। Then came Rutherford's gold leaf experiment. What did Rutherford do? He took a radioactive source and he bombed alpha particle. What is alpha particle? Positively charged particle, which are like the helium nucleus, and he bombed it on a thin sheet of gold. What did he find? Three major findings. Majority of the alpha particles passed through, a few got deflected, and 1 in 12,000 or 20,000 suffered 180 rebound. Majority going past through states to him that the atom's major part is vacant. Had it been positive, then the alpha particle should have got rebounded. Then few got deflected means there is presence of positive charge, and very few, 1 in 1,000, rare of the rarest got means that there is positive charge and it is in a concentrated zone and whose mass is very high, which is causing 180 rebound. Based on that, Rutherford gave the model of the planetary model. He said the atom, he was the first person to bring the word nucleus. The atom consists of a central core which is known as the nucleus. The nucleus contributes to major mass of the element and it is positively charged. Electrons rotate like planets rotate around the sun in closed circular orbits. So the model was known as the planetary model. However, any electron is a charged particle. If it rotates in circular orbit, it will lose energy and as such follow a spiral path and should come and collide with the nucleus. This means that the atom stability is questioned now. Rutherford could not explain. Then came Niels Bohr. He said everything is fine, but the electron actually moves in circular orbit called energy levels. Every energy level has got a distinct amount of energy, unique. This energy is always fixed. Electron, as long as it is in an orbit, neither loses any energy nor gains. However, if electron jumps out, it gains. If electron jumps in, it loses. And it is the same amount. अगर 5 रुपया देके बाहर जाएगा तो 5 रुपया देके ही अंदर आएगा. Further, Bohr said that all these energy levels were named as KLMN, and he gave the formula for filling up electrons. First he said maximum number of electrons is as per 2n square, and when electrons get filled, remember that if you have more than one valence shell, then the last shell will have 8 electrons, which is the octet criteria. If you have less than one valence shell, if you have one valence shell, then the number of electrons is only 2, which is known as the duplet criteria. And if you are the last shell, no matter whatever is your maximum capacity, you cannot accommodate more than 8. So it was known as 2n square. That is the reason that sodium is not 289, but it is potassium is not 289, it is 2881, and calcium is 2882.
After this, we learned about isotopes, atoms of the same element which differ in atomic mass but have the same atomic number. Examples are hydrogen के 3 atoms है, प्रोशियम, ड्यूटेरियम, ट्राइशियम, carbon 14, carbon 12. And then what is the reason for having decimal atomic mass? The reason for having decimal atomic mass is that it represents the weighted average of the atomic masses of the isotopes available. Chlorine is available as C1735, C1737. Naturally occurring chlorine has 75% of 35, 25% of 37. So if you multiply 0.75 plus 0.25 of 37, you get 35.5. Then we learned about isotopes के uses क्या है. Radioactive isotopes, one is used in cancer, cobalt is used in cancer, uranium is used in nuclear reactor, and iodine is used in treatment of goiter. Other things are also can be thickness testing, tracers, ये भी बताइए, higher classes में बताएंगे आपको. Isobars are different elements having the same mass number but different atomic number. Argon has a mass number of 40, calcium also has a mass number of 40, however their atomic numbers are 18 and 20. बस इसके साथ चैप्टर होता है खत्म. मैं आशा नहीं किया कि इतने कम लोग आएंगे. You know, we had our 10th grade class was at 8 o'clock. We had 100% attendance. Rather, I was late. I opened the door today at 8:01. सब आ गए थे. एक बच्चा सिर्फ ऑनलाइन अटेंड किया. Well, generally the onlines are onlines, but in my offlines, all had come.